हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक सी विद ईज। इस वीडियो में मैं टेस्टेड नॉलेज क्वेश्चंस कवर करूँगा ऑफ इंडिया 37 प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस आउट। सो एक्स लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री। एक्स कंपनी है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 द इनकम टैक्स अथॉरिटीज sent a scrutiny assessment notice under section 143(2) of the Income Tax Act 1961 in respect to return filed under section 139 of this act for previous year 2020-2021। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी ने एक स्क्रूटिनी असेसमेंट नोटिस भेजा एक रेलेवेंट सेक्शन के अंडर इन रिस्पेक्ट टू रिटर्न जो फाइल करी है 139 सेक्शन के अंडर, वो भी कौन से प्रीवियस ईयर की 2020-2021 की। एंड इनिशिएटेड असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम बाय द कंपनी व्हिच इन द व्यू ऑफ द अथॉरिटीज वाज इनएडमिसिबल। मतलब उन्होंने गलत डिडक्शन किया है, क्लेम करा है अथॉरिटीज के हिसाब से, वो क्लेम नहीं करना चाहिए था। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 itself the assessment proceedings were completed and the assessing officer did not allow the deduction and raised a demand of 1 crore against the company. The company contested that such levy and filed an appeal with the appellate authority. At the end of the financial year 21-22, the appeal had not been heard. The company is not confident whether that the company would win the appeal. However, the company was advised by its legal counsel that on a similar matter, two appellate authorities of different jurisdictions had given conflicting judgment. One in favor of the SEC and one against the SEC. So basically 50% चांस थे जीतने के। So कंपनी कैसे अकाउंट करेगी इन ट्रांजेक्शन्स को, देखते हैं आंसर। India 37 provides that in rare cases it's not clear whether there is a current obligation. For example, in a lawsuit it may be disputed either whether certain events have occurred or whether those events result in a present obligation. In such a case, an entity should determine whether a present obligation exists at the end of the reporting period by taking account of all available evidence, for example, the opinion of expert. In the present case, the company is not confident that whether it would win the appeal. By taking into account the opinion of legal counsel, it is not sure that whether the company would win the appeal. On the basis of such evidence, it is more likely than not that a present obligation exists at the end of the reporting period. If an entity should recognize the provision, the entity should provide a liability for 1 crore rupees. बिकॉज कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और लीगल ओपिनियन उन्होंने काउंसिल लिया, वो श्योर नहीं था कि कंपनी जीतेगी नहीं जीतेगी। सो मतलब ना जीतने के चांसेस कहीं ना कहीं क्या थे, ज़्यादा थे। मतलब वो हारने के चांसेस क्या थे, ज़्यादा थे। और कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी एग्जिस्ट करती है। सो आई थिंक इसमें एनटीटी को 1 करोड़ रुपये का प्रोविजन अकाउंट करना चाहिए एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है। An entity is a telecom operator. Laying of cables across the world is a requirement to enable the entity to run its business. Cables are also laid under the sea and contracts are entered into for the same. By virtue of laws of the countries through which the cable passes, the entity is required to restore the seabed at the end of the contract period. So obligation वही है कि यार उनको केबल क्या seabed restore करना पड़ेगा, right? पैरा 14 ऑफ इंडिया 37 स्टेट करता है प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एंटिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो रही है पास्ट इवेंट के लिए। सेकंड, एक आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमारे जाएंगे और लायबिलिटी सेटल होगी। थर्ड, रियल एस्टीमेट में मेड कर सकता हूँ। सो तो देखो फाइनल आंसर तो यही है, हमें प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन सी वेक्टर रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मेरे बाहर जाएंगे, लाइबिलिटी है मेरी रिस्टोरेशन की, और थर्ड रिलायबल एस्टीमेट में कहीं ना कहीं मेड कर सकता हूँ इसमें। फर्दर विद रिगार्ड टू पास्ट इवेंट, पैराग्राफ 17 ऑफ इंडिया 37 स्टेटेड अ पास्ट इवेंट दैट लीड्स टू अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट। मतलब वो पास्ट इवेंट जिससे मेरी आज की ऑब्लिगेशन हो रही है, आज ऑब्लिगेशन राइज हो रही है, वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट होता है। फॉर एन इवेंट टू बी एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, इट इज नेसेसरी that the entity has no realistic alternative to settling the obligation created by the event. एक इवेंट को ऑब्लिगेटिंग इवेंट होने के लिए जरूरी है कि जो एंटिटी का पास कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव नहीं हो, सिर्फ इसके बजाय कि उसको लायबिलिटी सेटल करनी पड़े।
दिस इज द केस ओनली वेयर द सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, या तो लॉ ने ही इन्फोर्स कर दी, या कंस्ट्रक्टिव कोई ऑब्लिगेशन है जहाँ पे एंटिटी क्रिएट करती है वैलिड एक्सपेक्टेशन अदर पार्टीज पे, एंटिटी डिस्चार्ज करती है क्या ऑब्लिगेशन. On the basis of the above, provision should be recognized as soon as the obligate event take place, because the entity is under legal obligation to restore the seabed, provided the other recognition criteria stated in paragraph 14 reproduced above are met. Right. Moreover, the amount of the provision would depend on the extent of the obligation arising from the obligating event. Amount provision वही जो भी होगा डिपेंड करेगा extent of obligation कितनी है मेरी. In the instant case, an obligating event is a laying of cables under the sea. To the extent the cables have been laid down under the sea, a legal obligation has arisen, and to that extent, provision for restoration of seabed should be recognized. तो वो recognize हो जाना चाहिए. I hope this is clear. Third, you Limited is a large conglomerate with a number of subsidiaries. It is preparing consolidated financial statement as on 31st March 2022 as per the modified Ind AS, right? बड़ी कंपनी है, नंबर ऑफ सब्सिडीज अच्छी खासी हैं, प्रिपेयर कर रही है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2022 को एज पर नोटिफाइड इंडिया के हिसाब से. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ड्यू टू बी अप्रूव्ड फॉर इशू ऑन 15 मई 2022. फॉलोइंग आर अ फ्यू ट्रांजैक्शन दैट हैव टेकन प्लेस इन सम ऑफ इट्स सब्सिडीज ड्यूरिंग द ईयर. हमें कुछ फ्यू ट्रांजैक्शन दे रखे हैं जो कि हुई हैं सब्सिडीज में. ठीक है. जी लिमिटेड का होल जी लिमिटेड हमारी होल्डिंग ऑन क्या है, जी लिमिटेड हमारी होल्डिंग ऑन सब्सिडियरी है इसकी यू की, जो इंगेज है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस पे. 31 जनवरी 2022 को द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ यू लिमिटेड डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस ऑफ जी लिमिटेड फ्रॉम 30 अप्रैल. जनवरी में डिसाइड कर लिया जी को हम डिसकंटिन्यू करेंगे 30 अप्रैल से. पब्लिक अनाउंसमेंट कब मेड करिए 15 फरवरी 2022 को. G does not have any many assets or liabilities, and it is estimated that the outstanding trade receivable and payable would be settled by 31st May तक सारी चीजें सेटल हो जाएंगी. U कलेक्ट करेगा any amount still owed by G Limited कस्टमर के द्वारा 31 मई के बाद. They have offered the employer of G Limited termination payment for alternative employment opportunities. ठीक है. Following some of the details दे रखी है इसके रिलेटिंग G Limited के रिलेटेड. On the date of public announcement, it is estimated by GE Limited that it would have to pay 540 lakh rupees as a termination payment to employees, and the cost for relocation of employees who would remain with the group would be 60 lakh rupees. ठीक है. So termination मतलब लगभग 540 लाख के termination बेनिफिट पे करने पड़ेंगे, और relocation आएगी 60 लाख रुपये, मतलब लगभग 600 लाख, मतलब 6 करोड़ मान लो. The actual termination payment हुई 520 लाख की पर मेड इन फुल ऑन 15 में. The total revaluation कितनी है 63 लाख की. ठीक है, तो 63 मतलब 520 आप 63 प्लस कर लो. ठीक है. G Limited had taken a property on which is expiring on 31 मार्च 2026. The present value of expected future lease rental वो 430 लाख की उनको पेमेंट करनी है. So early termination के उन्होंने 410 लाख रुपए की पेमेंट कर दी लीज की. लॉस आफ्टर टैक्स ऑफ जी यूनिट हमें दे दिया 400 लाख का. फर्दर ऑपरेटिंग लॉस हुए 60 लाख रुपए के. तो मैं इसमें प्रोविजन बताने हैं. देखो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, करते हैं इसको. चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं थर्ड वाले को ही. सो देखो यार इसमें ना बड़ी चीज़ें जो देखने वाली है ना वो हमें मल्टीपल इंडेक्स आपको इसमें अप्लीकेबल मिलेंगे. प्लस हमें देखो जो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो बेसिकली देखो एक तो हमारा 520, देखो हमारी पेमेंट दो तरह की हुई है इसमें. एक तो 520 लाख की पेमेंट हुई है इसमें. ठीक है. एक पेमेंट हुई है 410 लाख की. दो तरह की पेमेंट हुई है. और ऑपरेटिंग लॉस तो हमें ऑपरेटिंग लॉस का तो कोई हमारे प्रोविजन कोई बनता ही नहीं है, वो तो फ्यूचर इवेंट है, वो हमारे हाथ में नहीं है. और लॉस का भी कुछ ऐसा कुछ नहीं बनाना. तो मेरे को लगता है 520 लाख का पेमेंट हुआ है, 410 लाख का पेमेंट हुआ है. अब जो ये लीज वाला है ना, देखो लीज वाला एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है. बिकॉज इसमें या तो मैं देखो कैंसिल करने में मेरे को कैंसिल करने की पेमेंट करनी पड़ी, और नहीं कैंसिल करता तो पेनल्टी, मतलब कैंसिल मान लो करता तो पेनल्टी लगती, तो ऐसा पेनल्टी वाली पेमेंट करी होगी मैंने. और कैंसिल नहीं करता तो मेरे को इतनी पेमेंट करनी पड़ती 430 लाख की. ठीक है. अब दोनों में से मैं लोअर लेता हूँ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में, तो 410 लाख की तो मैं इसमें रिकग्नाइज कर दूंगा.
दूसरा जो मेरा 520 लाख का मैंने पेमेंट करी है वो भी मेरी एज प्रोविजन रिकग्नाइज होगी, क्योंकि मेरा टर्मिनेशन पेमेंट है। एंड जो मेरी रिलोकेशन कॉस्ट है वो मैंने अभी तक पे नहीं करी है, और उसको मैं ऐसे अलग पार्ट मानूंगा। इसमें आंसर में ही दिया गया 63 लाख की जो पेमेंट में करनी है, ठीक है, तो उसका कोई प्रोविजन नहीं बनेगा। तो एक पढ़ते हैं, देखो जो ये एंटिटी जी है ना जिसको वो कर रहा है बेसिकली डिस्कॉन्टिन्यू कर रहा है, वो एक डिस्कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन है। A discontinued operation is one that is discontinued, या तो discontinue हो गया, वो classify हो गया, और held for sale, held for sale तो है नहीं। The operation of GE Limited was continued, discontinued on 30th April 2022 and therefore would be treated as discontinued operation for the year ending 31st March 2023. It does not meet the criteria for held for sale when the company is terminating its business, and इसमें कोई सेल का तो है नहीं बात। As per paragraph 72 of Ind AS 37, प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, रीस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या आता है, सेल भी आती है, टर्मिनेशन भी आती है बिजनेस की लाइन की, और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कब राइज होती है रीस्ट्रक्चर करने की, जब एंटिटी ने फॉर्मल प्लान बनाया जो कि बनाया है। एक्सपेक्टेशन भी एंटिटी ने इसमें रेज करी है, इट विल कैरी आउट द रीस्ट्रक्चरिंग बाय स्टार्टिंग टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान और अनाउंसिंग उसके मेन फीचर वगैरह भी जो भी है उन्होंने कर दिए, क्योंकि टर्मिनेशन पेमेंट पे करा, लीज कैंसिल कर दी, बड़ी बड़ी पेमेंट उन्होंने कैंसिल करी, तो मतलब फॉर्मल तो हो चुका है, प्लस उन्होंने अप्रूव भी करा है कहीं ना कहीं 15 फरवरी 2022 को। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्ड हैज डिसाइडेड टू टर्मिनेट द ऑपरेशन ऑफ जी यूनिट फ्रॉम 30 अप्रैल 30 अप्रैल से उन्होंने क्या डिस्कॉन्टिन्यू कर दिया। फॉर्मल अनाउंसमेंट 15 फरवरी को मेड करी, thus creating a valid expectation that the termination will be implemented. This creates a constructive obligation on the company and requires provisioning for restructuring. A restructuring provision includes only direct expenditure arising from restructuring that are necessarily entailed by the restructuring and are not associated with the ongoing activities of the entity. वो ही सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आएंगे जो अराइज हो रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग से, एंड वो कोई ऑनगोइंग एक्टिविटी से क्या है भी एसोसिएटेड नहीं है। जो टर्मिनेशन पेमेंट फुलफिल करता है क्या अबव कंडीशन को। एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, इवेंट्स रिपोर्टिंग डेट के बाद इवेंट्स जो भी प्रोवाइड करते हैं एडिशनल एविडेंस ऑफ कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट द रिपोर्टिंग डेट शुड बी रिफ्लेक्ट होना चाहिए किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देयरफॉर द कंपनी शुड मेक अ प्रोविजन ऑफ 520 lakhs इन दिस रिस्पेक्ट। द रिलोकेशन कॉस्ट रिलेट करता है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड आर नॉट लायबिलिटीज फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एट एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। जो मेरी रिलोकेशन कॉस्ट है ना मेरा फ्यूचर कंडक्ट को रिलेट करता है बिजनेस की, और वो लायबिलिटीज नहीं है रीस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में। हैंस वो रिकग्नाइज होंगी ऑन सेम बेसिस एज दे अरोज इंडिपेंडेंटली किसकी, रीस्ट्रक्चरिंग से, ठीक है। The lease would be regarded as an onerous contract, जो मैंने आपको बताया। Provision would be made at the lower of cost of fulfilling it and any compensation penalties arising from failure to fulfill it. Provision 10 लाख का बनेगा, lower पे बनेगा। Further operating losses related to future events and do not form part of a closure provision. वो future events से related है, वो उसमें कोई आपका closure provision का कोई उसका पार्ट नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। टोटल प्रोविजन कितने का बना, 520 410 लाख का, 930 लाख का मैंने टोटल क्या प्रोविजन बनाया। दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक यू शुड रिवाइज इट। नाउ कोड करते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट इज एंटाइटल्ड टू ड्यूटी ड्रॉबैक इफ इट एक्सीड्स इट्स टर्नओवर अबव अ स्पेसिफाइड लिमिट। एक कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है, सप्लाई कर रही है प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट को, वो एंटाइटल्ड है कि वो ड्यूटी ड्रॉबैक करेगी अगर वो एक्सीड करती है उसकी टर्नओवर अबव अ स्पेसिफाइड लिमिट। To claim duty drawback, the company needs to file application within 15 days of meeting the specified turnover. एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, सप्लाई कर रही है प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट को, वो इंटाइटल्ड है कि वो ड्यूटी ड्रॉबैक करेगी अगर वो एक्सीड करती है अपनी टर्नओवर अबव अ स्पेसिफाइड लिमिट, राइट। अब ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करने के लिए द कंपनी नीड्स टू फाइल एप्लीकेशन विदिन 15 days of meeting the specified turnover. If the application is not filed within stipulated time, the department has discretionary power of giving duty drawback credit. For the year the company has exceeded the specified limit turnover by the end of the reporting period. However, duty drawback can be claimed on filing of application within the stipulated period of time or on discretionary of department if filing of application is late. The application for duty drawback is filed on 20 अप्रैल, जो कि 15 दिन के बाद था।
Due drawback has been carried by department on 28 June 2022 and financial statement has been approved by director of the company on 26 July 2022. देखो this is a adjusting event I would say, ठीक है. हमें ड्यूटी ड्रॉबैक का क्या है, ट्रीटमेंट क्या है बताना है. क्या लिखा है? In accordance with the above, duty drawback which was contingent asset for the financial year should be recognized as asset and related income should be recognized in the reporting period in which the change occurred. That is the period in which the realization become virtually certain. ठीक है. तो इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने 2022-23 में इसको रिकॉग्नाइज करा, ना कि 2021-22 में. सो देखो यार, ये ना मेरा एक एसेट तो था ही. देखो मैंने एवल्यूएशन लेट फाइल करी, लेकिन अब लेट फाइल करने में भी डिस्क्रिप्शनरी पावर है डिपार्टमेंट के पास, वो मैं ड्यूटी ड्रॉबैक दे दे. और उन्होंने दे दिया हमें, बट दिस इज द इवेंट व्हिच इज अपीयरिंग लाइक आफ्टर फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है एंड बिफोर अप्रूवल हो रहा है, तो बीच में इवेंट अगर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एडजस्टिंग एंड नॉट एडजस्टिंग इवेंट में से ही होगा. तो उन्होंने नॉन एडजस्टिंग इवेंट माना है इसको. ये कह रहे हैं कि भाई जब बस इसको एसेट एज ए कंटीजेंट एसेट शो कर दो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जब एक्चुअली रियलाइज होगा मेरे को, जब एक्चुअली रियलाइज होगा जब उसको मैं वो अकाउंट करूँगा, राइट. तो इन्होंने ऐसे करा बिकॉज यार कहीं ना कहीं मेरी इनकम बढ़ जाती है ना, फिर अगर मैंने ड्रॉबैक दिखा देता तो इसलिए. इन द इंस्टेंट केस द कंडीशन ऑफ एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड टर्नओवर वाज मेट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द कंपनी वाज एंटाइटल्ड फॉर द ड्यूटी ड्रॉबैक. However, the application for the same has been filed at a stipulated time. Therefore, the rate of duty drawback was discretionary. Department के hands में था. Since the claim was to be accrued only after filing of application, उसका अप्रूवल का कंसीडर किया जाएगा 22-23 में ओनली, ठीक है. Accordingly, duty drawback के मेरा क्या है, contingent asset है रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में, क्योंकि which will be realized when the department credit the same. As per para 35 of Ind AS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets. Contingent assets are assets continually to ensure that the development are appropriately reflected in the financial statement. If it has become virtually certain that an inflow of economic benefit will arise, the asset and the related income और recognize की जाएगी financial statement of the period में जिसमें change क्या मेरा हुआ है. If an inflow of economic benefits has become probable, जो एंटिटी है वो क्या डिस्क्लोज करती है, कंटीजेंट एसेट. तो उसके हिसाब से उन्होंने कंटीजेंट एसेट क्या है शो करा है, और अगले साल रिकॉग्नाइज करेंगे वो इनकम. आई थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड रिवाइज. Entity expected entered into contract supply 1000 television sets for 2 million. उन्होंने सप्लाई में कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई में एंटर करा कि वो 1000 टीवी सप्लाई करेंगे 20 लाख रुपए में. Increase in the cost of input has resulted into an increase in the cost of sales to 2.5 million. The penalty for non-performance of the contract is expected to be 0.25 million. Has 2.5 million, right? Only to be okay. So हमें कितना प्रोब्लम क्या है, हमें मीडियन है, वो हमें बताना है कॉर्नरस है कि नहीं है, ठीक है, राइट. तो यार ये देखो इसमें ना कहीं आपकी क्या है, जिसमें अनअवॉइडेबल कॉस्ट है मीटिंग द ऑब्लिगेशन, वो एक्सीड कर रही है इकोनॉमिक बेनिफिट से जो मेरे को रिसीव होंगे. मतलब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इंडिया 37 के हिसाब से, वो होता है जो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो मेरे अनअवॉइडेबल कॉस्ट है ऑब्लिगेशन मीट करने की कॉन्ट्रैक्ट में, वो मेरे ज़्यादा हो रहे हैं, कॉस्ट ज़्यादा निकल रहे हैं इकोनॉमिक बेनिफिट से. मतलब देखो 2.5 मिलियन की मेरी कॉस्ट पड़ गई, बट मेरा जो सेल है वो 2 मिलियन की रही, मेरा 0.5 मिलियन का लॉस हो रहा है और मेरी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है. तो मतलब इसलिए ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है. पैराग्राफ स्टेट ऑफ इंडिया 37 स्टेट करता है जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट में, वो रिफ्लेक्ट करती है द लीज नेट कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विच इज द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग इट and any compensation penalties arising from the failure to fulfill it. In the instant case, the cost of fulfilling की cost क्या है 0.5 मिलियन और एग्जीक्यूटिंग की कॉस्ट क्या है 0.25 मिलियन, वो मैं दे रखी है. 0. अगर मैं मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करा, मैं कह रहा हूँ मेरी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, तो मेरे को 0.25 मतलब लगभग 2.5 लाख रुपए किसको देने पड़ेंगे, एंटिटी को देने पड़ेंगे. लेकिन मैं कह रहा हूँ फुलफिल करूँगा तो मेरे को लगभग 5 लाख रुपये का क्या है लॉस हो जाएगा, ठीक है.
In accordance with the above reproduced paragraph, it is an onerous contract as cost of meeting the contract exceeds the economic benefit. Therefore, the provision should be recognized as the best estimate of the unavoidable cost, which is the lower of fulfilling it and any compensation or penalties arising from failure to fulfill it. तो दोनों में से दो लेंगे 0.5 मिलियन मेरा क्या है कॉस्ट आ जाएगी. आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू शुड रिवाइज इट. इसमें अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है. तो इसी के साथ हमारा टेस्ट नॉलेज वाले क्वेश्चंस भी क्या कवर हो जाते हैं. आई होप